Hello everyone, welcome back to your physics class. I hope you all are good. In the previous video we have completed the revision of chapter first. So today we will start with the second chapter, force and pressure, and which is describing the motion of the objects. So let's start with the first topic, that is rest and motion. As we know that objects around us can be either in rest or in motion. That means bodies are either moving or they are at rest. So on the basis of that we can say that objects are found only in two states, that means in rest and in motion. So objects like tree, table, buildings, all these are always standing and they are not moving from one place to another with respect to time and their surroundings. मीन्स कि वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू और अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास के विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज नहीं हो रही हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बोल सकते हैं दे आर सेड टू बी एट रेस्ट. दैट मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन द term rest. These are two terms, rest and motion. We can define the term rest that if an object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time and surroundings. So this is rest. And when do we can say that objects are in motion? Like the various objects can move, like vehicles, human beings, we can also move from one place to another. Similarly animals, birds, these can move from one place to another place and they can change their, that means they can change their position with respect to time and surroundings. So these objects are said to be in motion. So in this way we can describe rest and motion states of the objects. Next is that rest and motion are relative terms. What do you mean by relative? Relative means when the state is seen with respect to one object, then it is termed as rest, but with respect to other object that can be termed as motion. So these are relative terms. How these are relative terms we will see here. As I have described motion, that object can change its position from one point to another point. So we can take an example. For example, suppose an object is at point P and here 1 is the reference point. That means from where, or we can take P as the reference point, and if the object is firstly at this point, that which is termed as 1, and after some point it reaches to point 2, then that means the object has changed its position with respect to this reference point. Reference point is what? It is the point or the object or anything with respect to which we are observing the body that is being at rest or in motion. Means कि जिसकी with respect to हम किसी body को observe करते हैं कि वो rest में है या motion में है. तो हमने एक बॉडी ले ली है जो कि पहले क्या है पॉइंट 1 पे थी और कुछ टाइम बाद वो जो बॉडी है पॉइंट 2 पे चली गई. अब ये जो उसकी पोजीशन है ये पॉइंट पी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, विच इज द रेफरेंस पॉइंट. दैट मीन्स with respect to point P, the body is firstly at point 1, and with respect to the point P, after some time the body has moved to point 2. मीन्स कि हम अगर किसी भी बॉडी को की पोजीशन देख रहे हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम वो किसी पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के या किसी थिंग के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे होंगे. हम उसको ऐसे एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ऐसे नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है. सो दिस point is known as the reference point, the point or the object with respect to which a body is observed as being at rest or in motion. Means कि जिसके with respect to हम किसी और बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को रेस्ट में या फिर मोशन में देखते हैं, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. So for example, we have a situation like if you are sitting in a moving car or bus, then you don't feel that you are moving. Why? Because body position doesn't change with respect to driver and the other sitting. means कि जो भी पर्सन उस कार में या बस में बैठे हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू उनकी तरफ से
आपकी जो बॉडी पोजीशन है वो नहीं चेंज हो रही। अगर हम उनकी तरफ से देखें तो उनकी आपकी बॉडी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बट अगर हम आउटसाइड देखते हैं, अगर हम बस के या कार के आउटसाइड देखेंगे, जैसे कि वहां पर ट्रीज हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम ये फील करेंगे कि इफ दैट वी आर मूविंग, तो हमें ये लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं। सो ये क्यों है? This is just because of the body is in motion with respect to the trees and the other reference points outside the car. Because in the car, the reference points are various, like the objects sitting in the car. Means कि जब हम कार के अंदर की बात करें तो वहां पर रेफरेंस पॉइंट्स वो हैं जो कि हमारे आसपास बैठे हुए हैं, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू हम रेस्ट पे थे। पर जब हम बाहर देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, ये क्या है, इससे इनको देख करके हमें लगेगा कि हम जो मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन रेफरेंस पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू हम लग रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। सो दिस इज बिकॉज योर बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड अदर रेफरेंस पॉइंट्स आउटसाइड द कार। सो इट इम्प्लाइज, मीन्स कि इससे ही कंफर्म हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर appearing to be in motion with respect to one reference point may appear to be rest with respect to some other reference point. अब ये इससे क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में भी दिख सकता है, रेस्ट में भी दिख सकता है, बट वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। मीन्स कि एक टाइम पे वही ऑब्जेक्ट मोशन भी दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट, बट दूसरी टाइम पे या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे लग सकता है किसी और रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू। मीन्स कि ये डिपेंड करता है, ये जो स्टेट है रेस्ट और मोशन जो स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। अगर तो रेफरेंस पॉइंट उसकी कार के बाहर है, देन वी आर appearing in motion, but if the reference points are inside the car, then we are at rest. So we can say that rest and motion are relative terms, means कि ये एक दूसरे पे depend कर रही हैं। So here in this case there are two cases. In the first case, which is the reference point in the first case is the objects present in the car or the persons present in the car, due to which we are appearing at rest. But outside the car, the reference points are buildings and trees, due to which we are appearing in motion, or according to that we are in motion. So next we will discuss the types of motion. So as we have learnt about motion, there are various types of motion. First is the translatory or translational motion. We can either say translatory or translational. So the type of motion in which every part or particle of the object moves through the same distance in the same time interval, that is known as translatory motion. Means कि वो मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का हर पार्ट या उसका हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ कार और मोशन ऑफ बस, उसमें क्या है कि क्योंकि अगर हम कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो जो कार का मोशन होगा वही हमारा मोशन होगा, और या फिर जो बस में पैसेंजर्स बैठे होंगे, अगर बस का मोशन है तो वही मोशन क्या होगा, उस बस में बैठे हुए पैसेंजर्स का होगा। मीन्स कि अगर बस 3 आवर्स में कवर कर रही है 60 किलोमीटर, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे वो भी क्या है, सेम टाइम में वही सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। दे विल ऑल्सो कवर 60 kilometers in 3 hours. So it means this type of motion is known as translatory motion. So next is the types of translatory motion. There are 3 types of translatory or translational motion: rectilinear motion, curvilinear motion and circular motion. First is the rectilinear motion. Rectilinear motion is that motion in which an object moves along a straight line path. Means कि जब एक object straight line में move कर रहा है उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइक दिस, जैसे कि एक ट्रेन मूव करती है या फिर रोड पे एक स्ट्रेट रोड पे बस मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन।
or a train moving along a straight line path, that is also rectilinear motion. Similarly अगर कोई freely falling object है, जैसे fruit fall कर रहा है ट्री में से, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या फिर लीनियर मोशन होगा. सो दीज आर द एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, an athlete running on a straight track. These are the examples of straight line motion. Next is curvilinear motion. Curvilinear motion is the another type of translatory motion, and if we can define curvilinear motion as the motion in which an object moves along a curved path, then the motion is said to be curvilinear or curved motion, like this. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करे, जैसे इस तरह का पाथ है, कोई कर्व पाथ, जैसे कि एथलेटिक ग्राउंड में होता है, इस तरह से कर्व पाथ होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक ऑल द व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल हो सकता है दैट आर मूविंग ऑन अ कर्व रोड और कर्व पाथ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. जो अर्थ रेवोल्यूट करती है अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ. हम ये बोलते हैं कि जो अर्थ है का मोशन है अराउंड द सन, इट इज सर्कुलर बट नॉट, इट इज इलिप्टिकल. ये इलिप्टिकल है. इलिप्टिकल मीन्स कि इस तरह की होती है शेप इसकी, जो हम एक एग शेप भी कह सकते हैं. जब ये इलिप्टिकल शेप में इस तरह से अर्थ के अराउंड मूव करती है विद सन एज वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स. इलिप्स एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर सन होता है और उसके आसपास है जो अर्थ इस तरह से वो जो है रिवॉल्व करती है. सो दिस इज ऑल्सो, here you can say this is also a curved path at some points. Here is the curve. So this is the revolution of the earth around the sun in an elliptical path. Next is a ball thrown in a curved path while playing. जब भी हम बॉल थ्रो करते हैं इस तरह से, तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करती है, कर्व पाथ फॉलो करती है यहाँ से यहाँ तक का. नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलर मोशन. दिस इज द अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, and this is a special case of curvilinear motion, because in this type of motion objects move in a circular orbit or circular path. means कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कुलर पाथ इज लाइक अ सर्कल. सर्कल में भी क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसका हम क्या बोलते हैं, उसका सेंटर. तो यहाँ पर भी क्या है, सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है इट विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका हम बोलेंगे उसका सर्कुलर मोशन. एंड वन थिंग वी मे नोट दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और सेम. मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगी फिक्स्ड पॉइंट से लेके किसी भी सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पहले, तो उसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर आ जाए, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी. क्योंकि इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर्कल में, वो भी क्या है, रेडियस होता है, और रेडियस भी क्या है, हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है. तो इस तरह से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट और सेम. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के अराउंड इस तरह से रेवोल्यूट करता है इन द सर्कुलर पाथ. सेकंड इज ए पर्सन सिटिंग ऑन ए मेरी गो राउंड. मेरी गो राउंड आपने देखा ही होगा, ये जो जहाँ पर हम इस तरह से आसपास रिवॉल्व करते हैं, वो जो एक तरह का झूला होता है उसको हम बोलते हैं मेरी गो राउंड. सो नेक्स्ट इज द रोटेटरी और रोटेशनल मोशन. दिस इज द next type of motion, rotatory or rotational motion. So I hope all have seen spinning top. Spinning top means जिसको हम लट्टू बोलते हैं, और जब भी हम उसको रोटेट करते हैं तो वो रोटेट हो, जो उसका मोशन है वो सर्कुलर मोशन होता है अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस. Here I have written fixed point, it is fixed axis. Means when we consider the case of a spinning top, then in the spinning top each point of the top undergoes a circular motion about its fixed axis that lies in the body of the top, but the distance of each point from the axis is not the same. Here you can see I have drawn the spin. See here, when we rotate the spinning top, what happens, it moves the each part of the spinning top. means कि इसका हर एक पार्ट या हर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन करेगा, with but the distance
from each particle or the distance from the axis from the each particle is not same, means कि हर पार्ट की जो इसके एक्सिस में इसके थ्रू जो डिस्टेंस होगी वो सेम नहीं होगी। अब एक्सिस कहाँ पर है? एक्सिस इज विद इन द बॉडी। ये जो स्पिनिंग टॉप है यहाँ पर इसका एक्सिस होगा जिसके अराउंड वो रोटेट करेगा। जैसे वो इस तरह से रोटेट करता है तो जो इसके अंदर का जो अंदर जो लाइन होगी एक इमेजिनरी लाइन, उसका हम बोलेंगे इसका एक्सिस। और इसके अराउंड जो है हर पार्ट है स्पिनिंग टॉप का या हर एक पार्टिकल है वो इसके अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। बट जो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ की, जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड एक्सिस से हर एक पार्टिकल की वो सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैटर ज्यादा है, यहाँ पर मैटर कम है, यहाँ पर मैटर ज्यादा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से किसी पार्टिकल तक और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से किसी पार्टिकल तक वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, दैट कैन चेंज। ये जो है यहाँ से एक एक्सिस पास होता है, इसका हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है और ये हमेशा बॉडीज के अंदर ही रहेगा। दिस इज लाइंग विद इन द बॉडी। So we can define rotational motion as a type of motion in which each part of the object moves in a circular motion about the fixed axis lying within the body. So here are some examples of rotational motion. जैसे कि हमने देखा है जब भी हम साइकिल को पैडल करते हैं तो उसकी जो रोटेशन होती है व्हील्स की, दैट इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। जो हमारे फैंस हैं उनका भी जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यस, अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। ये जो अर्थ का अपने ही एक्सिस के आसपास जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। मीन्स कि अर्थ इस तरह से रोटेट करती है। जैसे स्पिन बॉलर्स होते हैं वो भी बॉल को इस तरह से स्पिन करते हैं, घुमाते हैं अपने एक्सिस के अराउंड। तो इस तरह से जो अर्थ है वो इट ऑल्सो स्पिन्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट इज द ऑसिलेटरी मोशन। This is the another type of motion, oscillatory motion. What we mean by oscillatory motion? All have seen the pendulum clock. Pendulum clock को के बारे में सभी को पता है। And pendulum clock works on the principle of pendulum. पेंडुलम क्या होता है? इट इज जस्ट अ मेटालिक बॉब या एक बॉल कह सकते हैं, मेटालिक बॉल हम ले सकते हैं, विच इज हैंग्ड विद अ थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट। ये रिजिड स्पॉट है और यहाँ से हमने इस बॉल को हैंग किया हुआ है। व्हेन वी पुश दिस बॉब, जब हम इसको पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, देन इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पोजिशन। इस पोजिशन को हम बोलते हैं मेन पोजिशन। From this position, that means from mean position to extreme position, this position and these positions are known as extreme positions. Means कि ये जो बॉब है ये स्टार्ट करेगा मूव करना from its mean position to one of its extreme position, then it will come back to the mean position, again it will go to the second extreme position, then again it will come from the second extreme position to the mean position. तो जब ये इस तरह से mean से extreme जाएगा, फिर extreme से mean आएगा, फिर mean से extreme जाएगा और फिर वापस आएगा, तब हम कहेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है। ऑसिलेशन क्या है? ये जो आगे पीछे मूव कर रहा है बॉब, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। द टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करना या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। दैट मीन्स द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं बॉब, जैसे मैंने बताया आपको, object moves back and forth or to and fro about its mean position is known as oscillation or oscillatory motion. So this is the oscillatory motion of a pendulum. For example, we can see the examples of oscillatory motion in our daily life, like motion of a swing. Swing पे का जो motion होता है आगे पीछे इस तरह से हम मूव करते हैं, तो उसको वो जो motion है वो that is also oscillatory motion. Next is the swinging of a hand fan. स्विंगिंग ऑफ अ हैंड फैन मीन्स कि हम जो हैंड फैन को इस तरह से घुमाते हैं वो भी क्या है? स्विंगिंग, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ ए पेंडुलम, आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट इज द वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट wholly does not move back and forth, but its atoms or particles oscillate about its mean position. What is it? I will explain you. Further, we can see the examples of vibratory motion. See here,
जो मोशन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लाइक गिटार एंड वायलिन, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन मीन्स कि हम उसको जो पिन से इसको वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, तब वो उसमें जो म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, तो वाइब्रेशंस की वजह से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क किस तरह से का होता है, कुछ आई होप यू हैव सीन। जब भी हम इसको ऐसे इस तरह से पुश करते हैं तो ये जो इसका मटेरियल है ये क्या करना है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन वी पुश वन ऑफ इट्स टू प्रोंग्स, जब भी हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मोशन ऑफ ए सेल फोन ऑन वाइब्रेशन, मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मोशन ऑफ बॉबल हेड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सो व्हाट हैपेंस इन वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो जब भी वाइब्रेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि उसमें क्या है कि जो बॉडी है वो खुद मूव नहीं करती है, इट डजंट मूव होलली फ्रॉम बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे खुद तो मूव नहीं करेगी, बट उसके अंदर जो एटम्स और पार्टिकल्स होंगे दैट विल ऑसिलेट, वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से आगे पीछे मूव करेंगे। सो वो they will oscillate about their mean positions. So this type of motion is known as vibratory motion, means in which only the atoms or particles oscillate about their mean position and there is no effect on the whole body, on the motion of the whole body. And the shape and size of an object changes in the vibratory motion, means कि जब भी vibrations होती हैं तो shape और size जो objects का change हो सकता है, because there is a change in the position of the particles, that's why there can be change in the shape and size of the objects. So this is about the types of motion. We will further study the next type of motion in the next video. I hope this topic is clear to you. Thank you.